500 लेबर के साथ कम से कम 100 बच्चे होते हैं. Oh yeah. एंड व्हेन वी सी देम, यू नो, वो नंगे पैर हैं, वो रेती में, मिट्टी में, गिट्टी में खेल रहे हैं. वी हैव मेड इन शॉर्ट कि हम अपनी साइट पर पाठशाला चलाते हैं Wow. फॉर किड्स. जितने बच्चे आए, जिस एज के आते हैं, Wow, हम that's उनको so good to पढ़ाते know. हैं. Yeah. तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे कि यार हाँ. दिस इज व्हाट वी कैन डू फॉर आवर लेबरर्स हु आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर अस. फोकस मेरा रहता है टीम बनाने पर. सो आई पिक पीपल wherever I go, I see people that Yeah. कौन ऐसा हो सकता है जो मेरे विजन के साथ अलाइन कर सकता है. गलती होती है, आज भी गलतियां होती हैं, वी लर्न फ्रॉम इट. अगर प्रोसेसेस में हमारे यहाँ कहीं फॉल्ट है तो हम मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि ठीक है, अब ये फॉल्ट हुआ है, लेट्स Now. टैकल दिस थिंग एज ऑफ नाउ, Yeah. एंड आगे से इसको हम रूल बुक में लिखेंगे Right. कि दिस विल बी आवर कल्चर, कि हम ये गलती वापस नहीं करेंगे. Hello, everyone, and welcome to the IMA Podcast Series 2026. So, today we are joined by someone who just doesn't build projects but builds visions with convictions. A leader who understands that growth and numbers is not the only thing, but mindset and emotions also matter. So, today let's go beyond the designation and explore the human side of ambition with Mr. Niket Mangal. Welcome, sir. Thank you so much. Yeah. So now everyone sees the managing director in you, and they know you as the real estate face in Indore. But I want to know who you are when there are no targets, no meetings, and no expectations. Most of the time, we, in our heads, it is always the targets, our ambitions, Correct. the team. Yeah. When I'm free, I'm with my friends Okay. or with my kids. I Okay. enjoy their company. Yeah. So दो ही चीज मेरे पास शाम को होती है ऑफिस के बाद. Either I meet my friends Yeah. or I go home and play with my kids and my family. Lovely. Is there any sport you enjoy in particular with your friends? Sports, I enjoy swimming. I Oh, enjoy nice. squash. ये दो स्पोर्ट्स हैं जो मैं सबसे ज्यादा खेलता हूँ. Very So in the nice. morning, it is my routine to play a sport and go to Then- gym for some time. Okay, that's lovely to know. Yes. So, what emotion drives you more than ambition? Is it the fear of failure, responsibility, or hunger to prove, or something else that comes to your mind? Ambition से ऊपर क्या है? To achieve something, to give back to the society. Okay. So I have been from a family of givers. I feel that my grandfather, he was, he has done so much of charity works Okay. for the society, for, everyone who he met. उनने धर्मशाला बनाई उनके समय में जो चलता था. Yeah. He created schools, charity schools. Okay. So मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ये सब करना चाहिए. I should take the legacy forward. Absolutely. And that is the reason. And he has taught us that always donate 10% of your wealth, Yeah. whatever you earn every year. So वो जब वो business किया करते थे, जब उनका business अलग था, he was not into real estate. So but उस business में भी आज भी एक percentage है जो जाता है for charity. charity में. Wow. And I have done the same. And उससे मुझे बहुत kick मिलता है और काम करने के लिए, because I want to do more charity, more work, more social work. So I think कि मैं जितना grow करूँगा उतना और मैं कर You'll पाऊँगा. be giving back to the society. That's a wonderful thought that you carry. And what do you think is the loneliest part of leading from the front when you are the managing director? What makes you feel lonely at times? मुझे ऐसा कभी lonely feel नहीं हुआ, frankly. That's good to know. जो टीम साथ में रहती है, मुझे ऐसा लगता है मुझसे ज्यादा चिंता उनको होती है काम की. Okay. काम को लेकर डेडलाइंस की, टारगेट्स की. सो आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट मुझे तो कुछ काम रहता ही नहीं है, बिकॉज आई हैव अ टीम. You're a lucky director. Nice. Okay. मोस्टली मुझे यही लगता है कि अगर मैं फोकस मेरा रहता है टीम बनाने पर. सो आई पिक पीपल wherever I go, I see people that Yeah. कौन ऐसा हो सकता है जो मेरे विजन के साथ अलाइन कर सकता है, Definitely. जो मेरे साथ काम कर सकता है, उसी एनर्जी के साथ काम कर सकता है, Absolutely. उस ईमानदारी के साथ काम कर सकता है. So I pick people. So it's been 15 years I've been picking people and people are working with me from the day one. आज भी वो लोग हैं Wow. मेरे साथ में.
जो पहले दिन से I मेरे साथ think काम that's a करते थे. great power, right? Yeah. That gives So you strength. the tagline of our company is "Let's grow together," Oh, and we okay. all live up to it. Yeah. पूरी कंपनी, in every meeting, every board meeting, I tell them हमारी शुरुआत ही इससे होती है, लेट्स ग्रो टुगेदर. जिया Yeah. कि नहीं आज हमने. Wow. So Wow. either it Good is to our know. customers, either it is our investors, हमारी टीम मेंबर्स हैं. So मैं सबसे यही पूछता हूँ कि आज हमने क्या ग्रो किया. That's So very that nice. is the culture we have bought in our company. Yeah. That's the reason I don't feel lonely. That's very good to know. Yeah. Very good to know that you're blessed with such a great team. More power to you and your Thank you. team. Okay. So, what if a big decision goes wrong? What happens inside of you? How do you tackle it? And something that no one sees that you handle alone. See, डिसीजंस बहुत बार गलत होते हैं. बिजनेस में आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कभी सही होंगी, कभी गलत होंगी. बट what I have realized in last 15 years of the career of business, because before that I was into job, is patience. अगर हमें पेशेंस होगा तो वो जो गलती हुई है वो सुधारने का समय हमें मिलेगा. Right. And again, what I have learned from my mentors is that एक बार गलती करिए उसको repeat मत करना at least. Right. And this is what I have learned from Yeah. everyone who has progressed in his life. So we do that. गलती होती है, आज भी गलतियां होती हैं. We learn from it. We have a team again. Yeah. So we know in our board meetings, Yeah. in our meetings, we discuss कि, और हम सब गलती करते हैं तो हम डिस्कस भी करते हैं मीटिंग्स में कि अगर ये गलती हुई है, कोई कस्टमर के साथ कोई चीज़ गलत हो गई Yeah. है, अगर प्रोसेसेस में हमारे यहाँ कहीं फॉल्ट है तो हम मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि ठीक है अब ये फॉल्ट हुआ है, लेट्स Now. टैकल दिस थिंग एज ऑफ नाउ, Yeah. एंड आगे से इसको हम रूल बुक में लिखेंगे Right. कि दिस विल बी आवर कल्चर कि हम ये गलती वापस नहीं करेंगे. Yeah. सो वहां पर हम लोगों को पेशेंस होता है, सो वी टैकल इट वेल. I think it's safe to call you a very cool leader or very Gen Z leader. I mean, you're just with everyone right there among the group. So Yeah. it's very nice to see that, things are changing in I business and tell it to my corporate. team. I tell it to my team कि गलती करने से मत डरना. हाँ. गलती होगी ना मुझे बता देना, क्या होगा, हाँ. नुकसान हो जाएगा ना, हाँ. मैं बैठा हूँ नुकसान उठाने के लिए. Very तो very big of a करो, heart to काम carry करो. है, काम करो. That's good to know. Okay. So looking ahead 5 years now, how do you see the real estate industry changing, evolving? Real estate is evolving every day, I would say, every month, every year, क्योंकि लोगों की हाउसिंग नीड बढ़ती जा रही है. Yeah. रोटी definitely. कपड़ा मकान हमारे पूर्वज और हमारे देश में स्पेशली Yeah. आज़ादी के पहले से भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस रही है, Mm-hmm. और वहीं आज भी इम्पोर्टेंस है. बट कोविड के बाद से उसकी इम्पोर्टेंस और रियलाइज होना शुरू हो गई है Yeah. लोगों को. नाउ पीपल वांट टू स्पेंड. पहले माइंडसेट था कि दे वांट टू सेव, एंड वो सेविंग जो है वो छूट जाती थी हाँ. अगली जनरेशन के लिए, एंड खुद एंजॉय नहीं Exactly. करते थे. Exactly. बट अब ये चीज चेंज हो गई है. नाउ पीपल वांट टू एंजॉय दैट मनी. Yeah. दे वांट टू लिव, दे हैव They want to invest. रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स. Absolutely. और सबसे पहले लिविंग स्टैंडर्ड रेज करने में घर इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद True. सब कुछ आ सकता है. True. जब तक आपके सर पे खुद की छत नहीं है ना. Exactly. सोशल मीडिया पे अभी बहुत चला हुआ है रेंट वर्सेस बाइंग, Yeah, exactly. everyone is like renting is good, हाँ. renting is good on papers, but you Okay. ask anyone sitting here, anyone from the audience कि क्या आपको अच्छा लगेगा रेंटल रहना? क्या आपका ड्रीम नहीं होगा खुद का घर रहना? कोविड में कितने लोगों को घर से निकाल दिया गया, Yeah. कितने लोगों को घर छोड़ना पड़ा. सो क्या हुआ उनका? उनके पास छत भी नहीं थी, उनकी फैमिली रोड पर थी, एंड हाउ वुड दे मैनेज? अगर किसी का छोटा घर है Exactly. तो वो उसको 2 महीने 3 महीने 2 साल वो उस छोटे घर में ही उसने मैनेज किया. सो पीपल हैव रियलाइज्ड दैट. Yeah. But that's a very valid point that you raised, that there is a lot of discussion and debate, not only on the gram, but yeah, even I have been a part of discussions where people are saying rent is better than buying a property. But what has changed recently that this is the discussion on the table? What changed? हर चीज पैसा नहीं होता ना. आप काम करते हो तो किस लिए काम कर रहे हो आप? रोटी कपड़ा मकान के लिए सबसे पहले, Yeah. क्योंकि रोटी शरीर के लिए चाहिए, कपड़े शरीर के लिए चाहिए, बट मेंटली पीस के लिए क्या चाहिए आपको? Yeah. आप दिन भर काम करने जाते हो, उसके बाद कहाँ आते हो आप? Yeah.
आप घर वापस आते हो, घर वापस आते हो, True. खुद के घर वापस आते हो कि किराए के घर वापस आते हो, Yeah. वो जो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन है वो वही समझ सकता है जिसने खुद का घर खरीदा है और जो रेंटल से रहकर खुद के घर में आया है, तो वो कभी ये बात नहीं करेगा। जब वो खुद का घर खरीदेगा ना, उसको पता होगा कि खुद का घर खरीदने की कॉन्फिडेंस क्या होता है। Exactly. I resonate with this so much because there was a point in my life where I lived for 1.5 years on rent, and now when I live in my own house, so I agree with what you're saying. Absolutely. Okay, so when we speak about next 5 years, of course the industry is growing. What are the opportunities for the newcomers to enter the market, and what are the challenges also? How do you see that? See, our Prime Minister have very well announced that he want to give housing for all. And अभी urbanization बहुत तेजी से बढ़ रहा है. Yeah. People are, moving to bigger cities. Yeah. So there are many opportunities. Again, रोटी कपड़ा मकान कहीं खत्म नहीं होना है. लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं. एक और बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियन सोसाइटी में, दैट फैमिलीज आर स्प्लिटिंग. True. किड्स आर मूविंग आउट टू वर्क, फैमिलीज आर स्प्लिटिंग. तो उनको भी घरों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और इसी तरह से घर की रिक्वायरमेंट बढ़ती चलेगी. जिसके पास एक घर है उसको दो लेना है, एक फार्म हाउस लेना है, ऑफिस लेना है, रेंटल प्रॉपर्टीज लेना है. सो इट इज अ साइकिल एंड वो बढ़ता चलेगा. दैट इज द रीजन ये इंडस्ट्री हमेशा ग्रो करेगी. एंड देयर इज लॉट मेनी थिंग्स कि इस इंडस्ट्री में बढ़ने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है. आप कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जा सकते हैं, आप सेल्स में जा सकते हैं. बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जिसमें आप काम कर सकते हैं. एंड एवरी स्ट्रीम विल ग्रो. Yeah, definitely. And what are the challenges? Do you see some prominent challenges? So challenges जो बहुत इन दिनों बढ़ गए हैं वो लेबर है. Okay. We are facing huge labor crunch in every project of ours. Okay. Because building बनाना मशीन से बनती नहीं है buildings, You need we can get manpower. material to our I side, get it, हाँ. but उसको एक घर Manpower बनाने चाहिए. का काम जो है Yeah. वो लेबर ही कर सकती है. Absolutely. Mostly 70-80% लेबर का काम होता है. Yeah. Only 20-30% है जो मशीनों से हम काम कर लेते हैं. True. So skilled लेबर मिलना बहुत प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि अगेन लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, देश ग्रो कर रहा है. सो लोग लेबर नहीं करना चाहते हैं, लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं. इसके कारण वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स. इसके कारण प्रोजेक्ट टाइमलाइंस बढ़ रही हैं. Okay. सो विद द इनोवेशंस एंड विद द एआई कमिंग इन, वी आर होपिंग कि नेक्स्ट 4-5 इयर्स में और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी जिससे हम फास्ट कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे. Good to know. I mean, this is one of the problem that you highlighted is coming from the ground level. Yeah, so I think it's a good insight for people who are listening to this. And one more thing that you just mentioned, that the demand is going to increase. So apart from people only wanting to buy for living, I think the purpose to invest, इसीलिए भी प्रॉपर्टीज लेना बढ़ गया, राइट? एम आई राइट इन दिस, दैट इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड? यस, सेफ्टी चाहिए लोगों को. जब एक लेवल के बाद जब आपके पास पैसा आ जाता है, व्हेन यू हैव डन योर बच्चों का स्कूलिंग हो गया है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी कर ली हैं, उसके बाद सबसे पहला थॉट ये आता है कि आई वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी. यू वांट टू जस्ट कीप इट सेफ. या, बिकॉज दैट इज द रियल असेट. यू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, इट इज नॉट असेट. वो कभी भी जीरो हो सकता है, कभी भी ऊपर जा सकता है. आप किसी भी और चीज में इन्वेस्ट करेंगे, आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट करेंगे, आप लग्जरी में इन्वेस्ट करेंगे, तो दैट विल नॉट गिव यू अ फीलिंग ऑफ असेट ओनरशिप. बट जब आपके पास प्रॉपर्टी होगी, और ये खरीदने के बाद ही आती है. मैं आपको कितना भी बोलूंगा, हमारे लिसनर्स कितना भी देखेंगे सुनेंगे कि भाई ये बोलने की बात है, बट जब जिस दिन आपने अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीद ली, उस दिन आपको महसूस होगा कि आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है लाइफ में. Exactly. How was your feeling when you bought your own first property after working? How was that feeling? So I would say कि प्रॉपर्टीज मैंने खरीदी हैं, बट मोस्टली मैंने प्रोजेक्ट्स के लिए खरीदी हैं. दैट वाज माय बिजनेस. एंड पहला प्लॉट जब मैंने खरीदा मेरे सेल्फ ओनरशिप पर कि अब ये असेट में जाएगा. दिस इज नॉट प्रोजेक्ट, दिस इज असेट. उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा. एग्जैक्टली. क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आया, एंड मुझे ऐसा लगा कि यार आई हैव सेफगार्डेड माय फैमिली. एग्जैक्टली. एक अकम्प्लिशमेंट मुझे कुछ भी होगा लाइफ में, देयर इज द प्रॉपर्टी. मेरे बच्चों की शादी होगी, उनकी एजुकेशन होगी, मेरी फैमिली होगी. दैट इज सो ट्रू. आई मीन दीस आर द बेसिक्स दैट आर जस्ट यू हैव प्लान्ड इट इन
beautiful set man, Yeah. right? ज्वेलरी Exactly. है वो, कभी हाँ. बहुत प्रॉब्लम आई लाइफ में तो सबसे पहली चीज होगी जो ज्वेलरी हाँ. सेल करना पड़ेगी. हाँ. बट प्रॉपर्टी इज नॉट इजी टू सेल. Exactly. ठीक है, जब आपके पास प्रॉपर्टी है पहले ज्वेलरी जाएगी, प्रॉपर्टी एकदम आखिरी में आएगी और हो सकता है प्रॉब्लम तक तो सॉल्व भी हो जाए, Yeah. तो प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, वो बच जाएगी. But सो इसीलिए प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा है, बट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है. yeah, and it's a very smart way to invest, I feel. या Yeah, very strong way to invest. I mean, जिस तरह से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, आई थिंक यू गेट द और बेस्ट बढ़ते ही हैं, रिटर्न्स. यू हैव बेस्ट बढ़ते ही रिटर्न्स, हैं, यू गेट बेस्ट exactly. रिटर्न्स, तो क्यों नहीं प्रॉपर्टी में ज्वेलरी में इन्वेस्ट फिर करना. भी फ्लक्चुएशन यू सी, मेकिंग चार्जेस कट जाते हैं, बट आई हैव सीन लाइक रियल एस्टेट में इज अ प्लेस वेयर प्राइस विल राइज ओनली. यस, Yes. जमीन Okay. कम होती जा रही है, जमीन हाँ. बढ़ नहीं रही है. Correct. So, how do you see yourself contributing towards Indore, giving back to? How do you give it back? आपने बताया that you are your family has been a very charitable uh, member for the society. But what is that other thing that you want to do in regards in real estate? See, again, giving back to the society. So, we have just formed a foundation called PNM Foundation. Okay. So, my wife Priya is also very active in the business, and Okay. she's very active in social things also. Okay. So, we have just formed Priya Niket Mangal Foundation, Okay. and through that, we aim to educate the kids and the laborers. Okay. Because whenever we go at the site, फॉर एग्जाम्पल कोई साइट है, वहाँ पे 500 लेबर काम कर रही है, 500 लेबर के साथ कम से कम 100 बच्चे होते हैं. Oh yeah. एंड व्हेन वी सी देम, वो नंगे पैर हैं, वो रेती में, मिट्टी में, गिट्टी में खेल रहे हैं, धूप में हैं. Yeah. ठीक है, दे आर स्ट्रांग, दे आर बिकमिंग स्ट्रांग, But still. बट दे आर नॉट एजुकेटिंग. Yeah. उनको कोई एजुकेशन मिल नहीं रही. उसका रीजन ये है क्योंकि दीज लेबरर्स आर माइग्रेटिंग लेबरर्स. आज वो मेरी साइट पर हैं, कल किसी और साइट पर होंगे. तो वो कोई उनका स्थायी पता नहीं है, वो एक जगह Yeah. रहते नहीं है कि वो किसी एक स्कूल में उनका दाखिला कर सके. गवर्नमेंट स्कूल भी उस तरह से अलाउ नहीं करते हैं कि आप Yeah. हर तीसरे महीने स्कूल बदल लो. Correct. सो वी हैव मेड इन शॉर्ट कि हम अपनी साइट पर पाठशाला चलाते हैं Wow. फॉर किड्स. जितने बच्चे आए, जिस एज के आते हैं, once a week my wife goes there. Every 15-20 days I go there. We take lectures. हम लोग बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, Wow, हम that's उनको so good to पढ़ाते know. हैं. Yeah. सो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे कि यार हाँ. दिस इज व्हाट वी कैन डू फॉर आवर लेबरर्स हु आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर अस. Yeah, I mean, hats off. Thank you. That's one of a kind of initiative that I've ever heard. So, wow, congratulations to you. थैंक यू. So, if everything stops tomorrow, you don't have to work on growth charts or expansion plans, what will success mean to you personally without your balance sheet? See, today also I don't value my balance sheets that much. Okay. आज भी मुझे लाइफ वर्क बैलेंस करना आता है, एंड आई मेक श्योर दैट आई डू दैट. Okay. मुझे लगता है आई एंजॉय विथ माई किड्स, आई एंजॉय विथ माई वाइफ, आई एंजॉय हॉलीडेज, आई एंजॉय वर्क, आई एंजॉय टाइम विथ माई फैमिली. सो आई मेक श्योर कि मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा करता रहूं. Balance. सो आई एम नॉट 24/7 into my work. Hmm. You will not see me working all the time. You're blessed with a great team. Yeah, that is what. So Yeah. वो मेरा thought process था हाँ. कि मैं कैसे फ्री रह सकता हूँ. Yeah. मैं तभी फ्री रह सकता हूँ, मैं सक्सेस तभी हासिल कर पाऊंगा when I have a good team to work. Exactly. So that is what we are doing from last 15 years. Yeah. When I was in job, I was in RJ before that Oh. I was a journalist. तो मैंने जब जॉब किया, मैंने कॉर्पोरेट कल्चर देखा था. So, वहाँ जैसा मैंने कल्चर देखा था वैसा मैं अपनी कंपनी में लेकर आ रहा हूँ कि ओनर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रहें. Yeah. So team is working. Yeah. We give them holidays. We Yeah. give them forced holidays. Okay. Go enjoy with your family. We give them holidays. We paid holidays from our company. Wow. You go with your family and have a good time. Yeah. So मैं जो करता हूँ वो टीम भी करती हैं. And you know what? वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की बात है. कभी बिगड़ता है, कभी चलता है. That is life, up मौसम and के down. हिसाब से, yeah, but that's very, very interesting. I like your insights as a managing director and as a owner. Very nice. So, time for some rapid fire. You Oh. just have to choose one word, no time to think. So, whatever comes, you just have to go with it, okay? हाँ. Very simple. Okay, so legacy or peace? Peace. Pressure or purpose? Purpose.
Control or trust? Trust. Risk or stability? Stability. Emotion you feel the most? Progress. Okay. Emotion you hide the best? डर. Has success cost you something personal ever? Success cost me personal. I can't think of anything. Okay, then you're very lucky. One word for the next 5 years of Indian real estate. One word. Growth. Okay. One thing you are still chasing in your life. One thing. Peace. Okay. If a 20-year-old Niket Mangal meets this Niket Mangal, what would the 20-year-old feel? Overwhelmed or very proud or shocked? Yeah, he will be proud. I'm sure he will be proud. क्योंकि 20 साल में मैं नौकरी करता था. मेरी सैलरी थी 15,000 रुपए. एंड एट दैट टाइम आई थॉट कि अगर 1 लाख रुपए मेरी सैलरी होगी, so that is the success for me. And we have moved ahead of that long time back. Nice. So I am sure कि जो सपने मेरे 20 साल निकेत के थे, उससे हम बहुत आगे निकले हैं. And we have progressed and we have found balance in our life. Great. If any message that you'd like to give to the newcomers in this industry, what it will be? See, this one message जो मुझे मेरे अंकल से मिला था, मेरे ग्रैंडफादर से मिला था, कि जो भी बिजनेस स्ट्रीम या जो भी वर्क स्ट्रीम आपने चुना है, बी विद दैट. सो व्हेन आई चोज रियल स्टेट, आई स्टिक विद द रियल स्टेट. मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई व्हेन आई गॉट इनटू रियल स्टेट. 2 साल तक कोई डील्स नहीं हुई. आई कुड नॉट डू एनीथिंग. आई कुड नॉट अर्न लॉट ऑफ मनी. सो बट मुझे वो चीज़ हमेशा स्ट्राइक करती थी कि यार मुझे रियल स्टेट में ही रहना है. सो व्हेन आई फेस द बैड टाइम ऑफ रियल स्टेट, at the good time of real estate, I was with real estate. So I progressed. जब उस बिजनेस का खराब समय था, मैंने उसका साथ दिया था, तो उसके अच्छे समय में उसने मेरा साथ दिया. That's so amazing way to put it out. Consistency, I think, is all he says here. So thank you so much. It was beyond your business and it was so enlightening and inspiring to me also. So thank you so much for this conversation. Thank you so much for inviting me and getting me here. Thank you.